Hello students, today I am with new topic Hitler's rise to power. Before this topic we read three topics. One is the year of depression, then the effect of war, and before that the birth of the Weimar Republic. Now the rise of Hitler, how Hitler got name and fame in the history of Germany. So this crisis in the economy, polity and society formed the background to Hitler's rise to power. Hitler born in the year 1989 in Austria. He born in Austria and lived a poor life. When the First World War broke out, जब पहला World War हुआ, he was in army. वो army में था as a messenger. He worked there, become a corporal. After that he became a corporal and earned so many medals for his bravery. The German defeat horrified him. When Germany lost in First World War, so this defeat horrified him and the Versailles Treaty made him very furious. In the year 1990, he joined a small group called the German Workers' Party. And after that, the party was renamed as Nazi Party. In the year 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria. So 1923 उसने बावेरिया को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की. इसके लिए उसने मार्च टू बर्लिन बर्लिन की ओर चले गया एंड कैप्चर पावर और जीत गया. He failed, was arrested and capture power. पावर को जो है हथियाने के लिए वो बर्लिन के थ्रू बावेरिया गया and he failed in his attempt and tried for treason and later released. तो उसको गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद छोड़ दिया गया. Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930. 1930 को नाजी पार्टी को जर्मन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बहुत ही कम सपोर्ट मिल रहा था. It was during the Great Depression that Nazis become a mass movement. तो Great Depression के दौरान ही Nazi became a mass movement. Nazi in 1905 Nazi party become a largest party in German parliament. उसके बाद 1932 में नाजी पार्टी जो है एक सबसे बड़ी पार्टी बन गई. But it was during the Great Depression that Nazis become a mass movement, and as we have seen after 1929, banks collapsed and business shut down, workers lost their jobs, and the middle classes were threatened with destitute. So क्या हुआ 1929 के इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण बैंक कोलैप्स हो गई, बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गई, वर्कर का जॉब खत्म हो गया और मिडिल क्लास को एंड द मिडिल क्लास वर थ्रेटन्ड विद डेस्टिट्यूशन. और मिडिल क्लास को अपनी जो भी चीज था उन चीज हाथ धोना पड़ा. In such a situation, Nazi propaganda stirred hopes of a better future. तो इसी दौरान 1929 के दौरान ग्रेट डिप्रेशन के दौरान नाजी का प्रोपेगेंडा काम आया. तो in the year 1928 the Nazi party got no more than 2.6% vote in the Reichstag, the German parliament. तो जर्मन पार्लियामेंट के इलेक्शन में 1928 में नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% ही सपोर्ट था. And by 1932 this party became largest party and got 37% support. And Hitler was a powerful speaker. Hitler बहुत ही अच्छा वक्ता था. His passion and his words moved people. उसके पैशन, उसके वर्ड ने, उसके शब्दों ने, उसके देश के प्रति वफादारी ने लोगों को आकर्षित किया. He promised to build a strong nation. उनके लोगों को वादा किया कि उनके लिए स्ट्रॉन्ग नेशन देगा. Undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of German people. और उसने उनसे वादा था कि जर्मन के लोगों ने जो उनकी डिग्निटी खोई है वो उनको वापस दिलवाएगा. And Hitler devised a new style of politics. उसने नए स्टाइल के पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस किया. He understood the significance of rituals and spectacles in mass mobilization. उसे विश्वास हो गया मास मोबिलाइजेशन क्या होता है, इसमें विश्वास होने लगा. नाजीज हैड मैसिव रैली, इस कारण नाजी ने बहुत बड़ी रैलियां की एंड पब्लिक मीटिंग की
to demonstrate the support for Hitler. और इन सब में वो जो है the Nazi held massive rallies to demonstrate support for Hitler, जिससे कि हिटलर को लोग पसंद करें, सपोर्ट करें. The red banner with the swastika, the Nazi salute, and the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of this spectacle of power. तो जो है स्वस्तिका का निशान जो हम आज हिंदू लोग अपने से मनाते हैं, ये निशान जो है जर्मन के झंडे के आगे. तो द रेड बैनर हो गया, स्वस्तिक, द साइन ऑफ स्वस्तिक, नाजी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड साउंड ऑफ राउंड्स ऑफ एप्लॉज. और एप्लॉज करना, प्रशंसा के आनंददायक तरीके से प्रशंसा करना, ये सब तरीके से जो है जैसे ही हिटलर स्पीच देता उसके बाद लोग करते थे या उनके जो पार्टी मेंबर्स थे वो करते थे, जिससे कि लोगों को हिटलर पे और ज्यादा से ज्यादा विश्वास हो सके. एंड नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा. और नाजी प्रोपेगेंडा में उनके जो पॉलिसीज थी उसमें हिटलर को मसीहा के रूप में दिखाया गया था, ए सेवियर, एक बचाव करने वाले के रूप में, एज समवन हु हैड अ राइट टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस. ऐसा दिखाया गया था जैसे देवदूत की तरह, भगवान के दूत की तरह, जो आकर के लोग की परेशानियों को दूर करता है. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. कैसे डेमोक्रेसी डिस्ट्रक्ट हुई जर्मनी से. सो ऑन 30 जनवरी 1933 President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. So 30 जनवरी 1933 को हिटलर को प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग ने जर्मनी की चांसलरशिप ऑफर. By now the Nazi had managed to rally the conservatives to their cause. Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structure of democratic rule. जैसे ही हिटलर को चांसलरशिप मिली उसके बाद सबसे पहला कदम उन्होंने उठाया, कैसे न कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम को जर्मनी से हटाना. A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. तो फरवरी में जो है, फरवरी के महीने में जर्मन पार्लियामेंट में आग लगी और इस आग ने जो है उसका काम जो काफी आसान कर दिया. द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech. तो इस फायर डिक्री ने, फायर के कारण जो 28 फरवरी 1933 को जर्मन पार्लियामेंट में रखी थी, इससे जो है लोगों के बहुत से राइट्स सस्पेंड हो गए, खत्म हो गए, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली दैट हैड बीन गारंटीड बाय द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी वेमार कॉन्स्टिट्यूशन और रिपब्लिक ने इनको दिए थे वो सभी राइट्स खत्म हो गए. देन ही टर्न ऑन हिज आर्क एनिमी द कम्युनिस्ट. उसके बाद जब लोग के राइट्स उसने खत्म किए तो अपने कट्टर शत्रु आर्क एनिमी जो कम्युनिस्ट की ओर गया. एंड मोस्ट ऑफ whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camp. और सबको concentration camp में बंद कर दिया है. concentration camp, a camp where people were isolated and detained without due process of law. जहाँ पे लोग को बिना किसी कानून के दबाव में आकर के बंद कर दिया जाए. द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वॉज सीवियर. और कम्युनिस्ट को जो रिप्रेस करने का तरीका था हिटलर का बहुत ही कठोर था. आउट एंड ऑन मार्च 3, 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वॉज पास. और 3 मार्च 1933 को फेमस एनेबलिंग एक्ट पास हुआ और दिस एक्ट स्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी. इस एक्ट के अकॉर्डिंग जर्मनी में डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश हो गई.
It gave Hitler all power to sideline parliament and rule by decree. और इस एक्ट ने हिटलर को इतनी पावर दे दी कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अलग कर सकता है और अपने तरीके से रूल कर सकता है जर्मनी। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैन। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी, जितने भी ट्रेड यूनियन थे, सब बैन हो गए। सिर्फ नाजी पार्टी और उससे रिलेटेड पार्टी वहां पे रूल कर लेगी। द स्टेट स्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। तो स्टेट का यानी कि हिटलर का पूरी इकोनॉमी, पूरी मीडिया में, आर्मी में, जुडिशरी में पूरा कंट्रोल हो गया। और स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजी वांटेड। तो नाजी जिस तरीके से सोसाइटी को चाहते थे, जैसे जर्मन सोसाइटी बनाना चाहते, उस तरीके से बनाने के लिए उन्होंने स्पेशल सर्विलेंस सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिएट की। इस तरीके से जर्मनी पे हिटलर का राज हो गया जब उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट किया और जर्मनी में डिक्टेटरशिप डेवलप हो गया, एग्जिस्ट हो गया। सो थैंक यू फॉर टुडे।